Welcome back. As politics heats up with the countdown getting closer to the D-Day, there is a race in Uttar Pradesh to woo the 20% vote. Remember, just almost 7 days ago, it was Asaduddin Owaisi who came knocking on the doors of Mukhtar Ansari's family, and now trumped and pipped to the post by his rival in the state. It was Akhilesh Yadav who had visited the family. Among the relatives that Akhilesh Yadav met today were Mukhtar's brother Afzal Ansari, his nephew Manu Ansari and son Umar Ansari. Afzal Ansari, remember, is himself a former BSP MP who was disqualified following a conviction and 4-year sentence in a kidnapping and murder case. Mukhtar Ansari's nephew Manu Ansari happens to be an SP MLA. Today, as Akhilesh Yadav met the Ansaris, he once again put forward the poisoning theory. He said that this is not the first time that such a thing would have happened under the current dispensation. He raked the issue of how political opponents have been poisoned in Russia, and at the same time also lended credibility to Canada's allegations against Indian government, which have been thoroughly and repeatedly denied by the centre, by the way, of an alleged murder plot against Gurpatwant Singh Pannu and role and involvement in the death of Nijjar. Now, what Akhilesh Yadav said is what you should pay attention to and listen very carefully. तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। रशिया में अभी लीडर ओपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा क्या आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। With elections just days away, it appears that all politicians are making a beeline to Mukhtar's residence because Samajwadi Party chief was definitely not the first one. First, it was AIMIM President Asaduddin Owaisi who met Mukhtar Ansari's family. Remember, his party is also contesting in Uttar Pradesh this time around, and mostly seats with a large Muslim population. Then it was the turn of former Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya, who has also formed his own outfit, Rashtriya Soshit Samaj Party. And then it was followed by Dharmendra Yadav, who's a former SP MP and now is contesting from another Muslim-dominated seat of Azamgarh. Today, to cap it all, came Akhilesh Yadav, whose visit comes at a time when his party is jostling for minority vote with AIMIM. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है।
What makes the leader of a principal opposition party in Uttar Pradesh say that a mafia, a don, a criminal who had 65 cases against him, including 16 cases of murder, who had been convicted in 8 cases in just the last year and a half, had contributed and had served the nation is beyond anybody's imagination, but is also easy to guess given the political compulsions. The BJP soon targeted SP president over the visit. दुर्भाग्यपूर्ण है, आखिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका साथ था, साफ साफ उनके हाथ में जितने भी माफिया हैं सारे के सारे उनके शासन के अंदर पालन पोषण उनका होता रहा है। मुझे लगता है कि समाज के अंदर बहुत गलत संदेश है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी लगता है कि ऐसे लोग जो असामाजिक लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके पास में ये प्रतिनिधियों का जाना, पार्टी का जाना, ये इनके चरित्र को दर्शाता है और इनके चरित्र के कारण ही जनता वहां पर निर्णय करती है और इनका साथ नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी को सुभाषपा का समर्थन प्राप्त है। सुभाषपा से ही एमएलए हैं अब्बास अंसारी। वो अगर समर्थन लेके सरकार चला सकते हैं तो उसमें उनको कोई बुराई नहीं, क्योंकि सत्ता चाहिए, उनको खुद डिप्टी सीएम बने रहना है। और समाजवादी पार्टी अपने सांसद प्रत्याशी जो गाजीपुर से हैं अफजाल अंसारी, उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, उनके निधन पे अगर उनके परिवार से उनके दुख व्यक्त करने जा रहे हैं तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिक्कत है। Chandra Gupta stays with us, and also joining us now is Kapish Srivastava, Samajwadi Party spokesperson. Kapish ji, क्या मजबूरी है ऐसी? नहीं, मजबूरी कोई बात ही नहीं। मजबूरी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने, और अगर ना होती तो ओपी राजभर साहब ने तो मुख्तार अंसारी को बकायदा कहा है कि ये तो गरीबों के मसीहा हैं। संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही बात कही। तो ये प्रश्न आप उनसे करें, और बकायदा उनके विधायक जो पुत्र हैं उनका साथ लेकर के वो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी पे खड़ा हो। हम तो अपने सांसद के बड़े भाई की मृत्यु पर शोक जाहिर करने और किसी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना हम नहीं समझते हैं कि विश्व में कोई भी व्यक्ति इसकी क्रिटिसिज्म कर सकता है। सर, but this is not just कोई दिवंगत आत्मा ना, this is a man who has 65 cases against him. अरे अभी तो 65 से ज्यादा 80 वाले साहब हुजूर के पास हैं। उनका क्या इंतजार कर रहे हैं? जिनका नाम है ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह और केशव प्रसाद मौर्य जी पे क्या कम केसेस हैं क्या? या मोहम्मद गौस की हत्या का आरोप नहीं रहा? Chandra Gupta, it is a case of pot calling kettle black. BJP has no right whatsoever to question Samajwadi Party. I think it's obviously, we all know that why Akhilesh went there. During the times of Mulayam Singh Yadav, Akhilesh Yadav, they created this Gunda Raj. The people who should be in jail were in Vidhan Sabha or Lok Sabha. And we all know that how kinds of Mulayam Singh Yadav and Mayawati created this ghost like Mukhtar Ansaris to Atiq Ahmeds of the world, right? So they want that, as you rightly said in the starting reportage, the 18%, 20% vote. For them, Mukhtar Ansari is a hero. They want to lionize it. For them, Atiq Ansari is a hero. उनका भाई उनकी मौत पे नहीं जाएंगे या और किसी की नहीं जाएंगे कभी, बट उनकी में बिल्कुल जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू शो कि थी वी आर स्टैंडिंग विद समवन जिसने कृष्णानंद राय के शरीर पे 400 गोलियां चला दी थी। वी वांट टू स्टैंड विद देम। तब नहीं गए थे कृष्णानंद राय, बल्कि जो पुलिस वाले ने एलएमजी बरामद करी थी शैलेंद्र सिंह, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने। सो आई थिंक दिस इज एविडेंट। आई थिंक अच्छा हुआ चले। Yes, no, but it's a valid question that anybody is and should be asking, that while BJP is claiming to be holier than thou, their ally is also supporting Mukhtar Ansari's son. So they should refuse to take support from such a party. Let me clarify that. Let me clarify that. On record, Mr. Rajbhar has said कि वो सीट देने के लिए हमको दबाव डाला गया था कि मुख्तार अंसारी के बेटे को लड़ाओ। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब देखिए उनका स्टेटमेंट। Be that as it may, that's not an excuse for anything. I was forced to put the seat to Akhtar family, right? So I think people know that. No, but then Akhilesh Yadav is also being forced to do it because his party stands with the Muslims and he claims to be a messiah of the Muslims.
So that's why I think that's why it's very clear. It's evident to the people that he wants to stand. See, he's not standing with a Muslim. He should very well stand with every community. He's standing with a dreaded criminal who has 66 cases against them. Okay, और now, कोई मुस्लिम मरता है तो नहीं जाते हैं वो. okay, now this is a grey area. I would no, there is no party. The Ansaris also have links with the BSP. The Ansari also have links with the NDA allies. The Ansaris definitely have clear and prominent links with the Samajwadi Party. They exert influence in a certain area. But कपीश जी, मुझे ये बताइए कि आपने पार्टियों को तो पॉलिटिकल पार्टी आपस में झगड़ा करे समझ में आता है, बट आज अखिलेश यादव जी को देश को इसके बीच में लाने की क्या जरूरत थी? फॉर आवर व्यूअर्स, टू गिव देम कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन, लेट्स लिसन इन टू व्हाट अखिलेश यादव सेड while he was trying to make a case for Mukhtar Ansari's death and being poisoned. He decided to drag in India's reputation on international level while trying to make a political point. Listen in to Akhilesh Yadav. रशिया में अभी लीडर ओपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? तो क्या हम जो विपक्ष के लोग हैं शक कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? कपीश श्रीवास्तव, पहली बात तो मुख्तार अंसारी के केस में एक बांदा हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ चुकी है, एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद तीसरी सीजेएम की इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करिए, फिर भी वन कैन एक्सक्यूज दैट। आपको अपने देश की रेपुटेशन को दांव पे लगाने की क्या जरूरत है? India has denied that, there are these foreign countries who are leveling allegations. India has on record gone and denied it. How is Akhilesh Yadav deciding where does he stand on this? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कह दें कि आपने जो मुख्तार अंसारी के संदर्भ में कहा कि जो उन्हें जहर खुरानी की बात है, भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट के अंदर याचिका उन्होंने अपनी लगाई थी और उस याचिका पर ये आदेश हुआ था कि इसकी जांच कराई जाए, तब तो वो जिंदा थे। योगी सरकार अगर इतनी ही पाक साफ थी तो क्यों नहीं एक मेडिकल कमेटी जो है वो बैठा करके उन्होंने कर दिया? या घर के मृत्यु के बाद जब ये आरोप उनके लड़के या परिवार के लोग लगा रहे थे और उनकी डिमांड थी कि एम्स में कराया जाए, तो क्यों नहीं कराया? नहीं, बट सर देखिए, that debate has happened last week. That debate has happened. My question, my very limited question is, Chandra Gupta, sorry, you're saying something. Apart from the Banda Medical College, the doctors from AIM already did the autopsy. Yes, which is what I said. There are two medical reports which say what is the cause of death. But be that as it may, you can refute it, which is why there is another inquiry taking place, because the truth must be found. There is. की रिपोर्ट आ गई क्या? अरे सर नहीं आई ना, वही तो सवाल है मेरा। नहीं तो वही तो मैं वहाँ रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आज जब अखिलेश जी कहते हैं कि जो कनाडा एलिगेशन लगा रहा है, जैसा रशिया में पॉइजनिंग होती है, इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशन है, कनाडा के एलिगेशन ज्यादा क्रेडिबल है आपके अपने देश की रेपुटेशन से। मैं एक एडवोकेट होने की वजह से भी आपको एक बात कह सकता हूं, क्योंकि विसरा जब प्रिजर्व किया जाता है, अरे तो सर 20 से 25 सर कनाडा के एलिगेशंस में आप कहाँ विसरा लेके आ रहे हैं? आई एम सेइंग दैट देयर इज वन पेंडिंग रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। आई एम सेइंग कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि आप किस हद तक जा सकते हैं कि आप अपने देश, आप बीजेपी को दीजिए ना गाली जो आपको देनी है। अरे ये प्रधानमंत्री कहां तक गिर सकते हैं? आप देश को कैसे बीच में ला सकते हैं? बट एनीवेज, देश के सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं और आप दुनिया के आरोप लगा रही है। विश्व गुरु बनने चले थे। सर आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, आरोप अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं। इनफैक्ट वो आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, वो सीधा वर्डिक्ट दे रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू शांतनु एंड कपीश जी फॉर जॉइनिंग अस। वी रियली नीड टू टेक अ ब्रेक। The News Hour Special Edition.